So a good starting point is from the next slide, where we say, well, about 10 years ago, so it was April 2010, almost 11 years ago now, we added Article 25A to the Constitution of the country. This article is special in the sense that it goes into the basic rights section of the Constitution, जहाँ पे basic सारे rights दिए हुए हैं. उसमें under the 18th Amendment we added 3 new articles, 25A, I think it was 19A, and there was one on fair trial. I'm forgetting it was 11 or 13A. So 3 of those articles were added. So education was one of them. The other ones were one on free trial and the one on access to information. The article on right to education states, and it's given in front of you, the state shall provide free and compulsory education to all children of age 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. Yani basic right to the. So what this does is, if it's in a basic rights section of the Constitution, what it does is it makes it justiciable. So somebody could potentially, and this has happened in various courts in Pakistan already, somebody could go to the court saying that, look, I have a basic right to education. I'm between the ages of 5 and 16 years. I should have free access to education, and this should be compulsory as well. Now, what I want to emphasize is these 2 aspects of it. One, this is a very special article. It's special in the sense that seldom is in the right section, you seldom see articles that are both a right and an obligation. Here, by saying that the state shall provide free and compulsory. कंपल्सरी का क्या मतलब होगा? कंपल्सरी का कंपल्शन का मतलब है ना कि जरूरी है आपके लिए ये तालीम देना अगर आप 5 से 16 के दरमियान है. And when you add compulsion, what essentially you are saying is that this becomes an obligation to the state. So what is needed is you have to be in school between the ages of 5 to 16, or whatever is the form of education that is being provided. And by saying it's free and the state shall provide, what is being said is that you can demand this from the government as well. So एक justicizable हो गया, लेकिन दूसरी तरफ obligation हो गई. So मतलब ये कि if there is a child who is not in school, the state could, by whatever force they deem necessary, require that child to be in school as well. इसके भी laws नहीं बने, as has been said, as in such manner as may be determined by law. कुछ provinces में draft हैं, कुछ में in some provinces they have been approved, but most of the provinces are heading in the direction very slowly to have laws under this article that will say कि what if a child is not in school? Our parents, can they be prosecuted? What will be the nature of that prosecution? Is it criminal? Is it civil? Whatever. So वो अभी फाइन्स वगैरह सोच रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे कि अगर पेरेंट ना हो. लेकिन हमने आर्टिकल 25A में 2010 अप्रैल में ये अपने तमाम बच्चों से वादा किया था कि हम उन्हें कंपल्सरी पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे और मैट्रिक तक 16 साल तक है, तकरीबन 10 साल की एजुकेशन बन जाती है, मैट्रिक तक हम उनको पढ़ाएंगे. This was done 10 years ago. As I said, इसके बहुत सारे अभी laws वगैरह बने नहीं. अच्छा जी, let me just go now to where we stand right now, and then we will come back to what impact will the single national curriculum have. अगर अगली slide आप कर दें. So this is, and the where we stand part I'm looking at under 3 different headings. 1, access. 2, quality, and the 3rd one, equity. Access में, the points I want to make are very obvious, clear, and they have been there in literature very clearly. 1, we say about 20 million odd 5 to 16-year-olds in Pakistan are not in schools. Right? They are not in education process, and that's something to note. Remember, पूरे कनाडा की जो है ना आबादी वो तकरीबन 30-33 मिलियन के करीब है. हमारे 20 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूलों में इस वक्त नहीं है, और ये बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा आबादी के बराबर तकरीबन बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं.
सेकेंड, ड्रॉप आउट इज अ ह्यूज इशू, और वो ड्रॉप आउट पहले ग्रेड से, तो जो 100 बच्चा आ भी जाता है स्कूल में, एक तो है ना कि 20 मिलियन स्कूल में नहीं है, जो 100 बच्चा स्कूल में आ भी जाता है उसमें से ओनली 6 or 7 रीच यूनिवर्सिटी लेवल. That will say what if a child is not in school? From grade 1 but grade 5 पे बहुत बड़ा ड्रॉप आउट आता है, मैट्रिक पे बहुत बड़ा ड्रॉप, 8वीं 9वीं 10वीं में बहुत बड़ा ड्रॉप आउट है, मैट्रिक में बेतहाशा बच्चा इस डर से कि फेल हो जाएंगे इम्तिहान नहीं देता, या फिर इम्तिहान में फेल हो जाता है. सो वो आप उसको मैट्रिक से एसेंशियली वहां पे खत्म हो जाता है, और उसके बाद एफएससी में और यूनिवर्सिटी पे तो बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं. सो इफ यू आर सिटिंग इन अ यूनिवर्सिटी, you already are in many ways elite in Pakistan because you are out of the 6 or 7 people who were able to reach university. HEC की जो विजन 20 पता नहीं कितना थी, 25 थी, 30 थी, मुझे अब से याद नहीं, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि वो इस 767% को 15% तक यानी 100% बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में तो आपके सामने है कि एक्चुअली द funding for education at the higher level as well as, well, especially at the higher level has been going down in nominal and definitely in real terms, or even in provinces. Recently, the funding for education has been, at least for the last few years, more or less stagnant or barely rising in nominal terms and not rising in real terms. So essentially what you have is a situation where there's a very large population sitting outside and there's a very large population that drops out before they finish their promised 10 years of education, and for various reasons. Second, next point I want to make is that there are no second chances in our system. So after 2 साल पहले with Adil Najam as the other main co-author, I'd done this UNDP Human Development Report for Pakistan. It was focused on youth, और उसमें बड़ी क्लियरली हमें 60-70% जो यूथ हम जिनसे बात करते थे वो कहते थे कि अगर उनका बस चले, और यूथ की डेफिनेशन वाज क्वाइट ब्रॉड, इट वेंट अप टू इनटू द 20s, तो 60-70% ये कहते थे कि अगर उनका बस चले तो दे वुड लव टू गो बैक टू एजुकेशन टू फिनिश इट. They would love to have second chances. They would love to acquire more education. लेकिन उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हमने बैरियर्स बनाए हुए हैं जिसमें री एंट्री, एक दफा आप एजुकेशन सिस्टम से निकल जाएं बहुत मुश्किल हो जाती है. वो एज के भी बैरियर्स हैं, वो डिग्री के भी बैरियर्स हैं. कहते हैं कि जी किसी जगह भी मैट्रिक में अगर 3rd डिवीजन आ गई है तो आगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. ऐसे बहुत सारे हमने बैरियर्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से, और जाहिर है ये भी वजह है कि हमारे पास तालीमी इदारे बहुत कम है, उसमें जगह कम है. तो इन सब वजूहात की वजह से सेकंड चांसेस लोगों को नहीं मिलते एक दफा अगर वो एजुकेशन सिस्टम से निकल जाते हैं कुछ सालों के लिए, या इवन अगर थोड़े अरसे के लिए भी निकल जाते हैं. एक्सेस में जियोग्राफिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है. प्रोविंसेस के दरमियान देखिए, बलूचिस्तान वर्सेस पंजाब, केपी, अगर आप पिछले कुछ सालों के एक्सेस के नंबर्स उठा के देखें, वी हैव हैड सम प्रोग्रेस इन पंजाब एंड केपी इन पर्टिकुलर on enrollment at the primary level, but that progress has been very slow at the secondary level, and it is not clear what the trend is in Sindh, and it is unclear. Balochistan में भी trend clear नहीं है. In fact, थोड़ा सा stagnation और आपको कोई खास progress नजर नहीं आती. So clearly, inter-provincial differences बहुत ज़्यादा हैं. Remember the promise of 25A as well as of the federation is कि सारे बच्चे across पाकिस्तान एक जैसे हैं. नस्ल, मजहब, रंग, जेंडर, किसी तरह का इम्तियाज उस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. सो अगर पंजाब का बच्चे को ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं सिंध के कम, या बलूचिस्तान के कम, या केपी को ज्यादा, तो दिस इज obviously a matter of great concern for us. There are tremendous rural-urban differences still. हमारी जो स्कूलिंग है वो बहुत ज्यादा, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, तो अभी मैं उस पर आता हूँ, बहुत ज्यादा फोकस्ड है on urban areas and where markets are more developed. Remember, private sector जाहिर है वहीं जाएगा जहाँ market थोड़ी होगी. So the big towns, the bigger cities, there the private sector is massive.
But if you look at rural Sindh, if you look at rural Balochistan, if you look at South Punjab, if you look at rural areas in general, you find there's very little penetration by private sector, especially in the middle and high school area, and therefore the difference between enrollments in the cities versus in the rural areas becomes large. लैंग्वेज और कास्ट के इश्यूज बहुत है इसमें एक्सेस में we hardly ever use the mother tongue or the tongue or that is spoken at home in the early years of education. हालांकि दुनिया में बहुत ज़्यादा evidence है कि in the early years learning is much more effective if it is done in your mother tongue. लेकिन बलूचिस्तान में भी हम उर्दू में पढ़ाते हैं, पंजाब में भी या अंग्रेजी या उर्दू रही है, केपी में भी अभी आजकल अंग्रेजी है, सिंधी में बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें और इश्यूज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के, जैसे मैंने कहा कि सिंध की प्रोग्रेस हैज बीन वेरी अनइवन, तो वहाँ वो मसाइल अभी तक है. सो लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इन सब के इफेक्ट बहुत हैं. देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वर्क विद मी टू लुक एट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर माइनॉरिटीज. लाहौर में उन्होंने surveys किए थे and they found stark differences between children from a religious minority versus children from Muslim background, even at the same income level, to have very different access opportunities in education. ये सारा कुछ जो रिजल्ट है, 20 मिलियन बाहर बैठे, बहुत ड्रॉप आउट कर रहे, कोई सेकंड चांसेस नहीं, tremendous differences across geography, language, caste, ये सारी चीजें बाय डिजाइन हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं. गो आपको याद होगा इवन बिफोर 25A बहुत अरसे से हमारे जो सेकंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रिंसिपल्स ऑफ जो प्रिंसिपल्स का सेक्शन है, उसमें हमेशा यूनिवर्सल एजुकेशन की बात रही है. प्राइमरी लेवल पे यूनिवर्सल एजुकेशन की बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैं बाय डिजाइन इसलिए कह रहा हूँ कि देखें हमारे मॉडल्स जिसके थ्रू हम एजुकेशन देते थे, उसी को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि दिस इज नॉट बाय डिजाइन, बाय डिफॉल्ट के बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं इस वक्त भी और या ड्रॉप आउट हो जाते हैं. अभी देखिए हमारा क्रॉस पाकिस्तान गवर्नमेंट का मॉडल ये रहा है कि हर विद इन अबाउट 5 किलोमीटर्स एक प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए था. ये गवर्नमेंट का है, मैं पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूँ. और फिर 4 या 5 प्राइमरी स्कूल्स के दरमियान एक मिडिल स्कूल होगा. तो क्या आप कह रहे हैं कि पहली बात 5 किलोमीटर इज टू लॉन्ग. अगर आप छोटे से बच्चों को देखें, बच्चे बच्चियों को, कि 5 किलोमीटर तक चल के या जिस तरह भी ट्रांसपोर्ट पे जाना, ट्रांसपोर्ट लेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, चल के जाएंगे तो सेफ्टी और बाकी इश्यूज आ जाते हैं. सो इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन टू गो in a radius of even 5 kilometers, but also importantly, and this is very borne out by numbers, think of पंजाब के कोई 50,000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें से कोई 32,000 शायद सिर्फ प्राइमरी स्कूल है. बाकी जो मिडिल और हाई स्कूल है वो तकरीबन मेरा ख्याल है हाई स्कूल सिर्फ शायद 9,000 या 8,000 के करीब है. सो 1 to 4 की रेशियो आपको स्कूल्स में नजर आती है बिटवीन प्राइमरी एंड हायर. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 100 बच्चा प्राइमरी स्कूल में आया है, उनको आप इकट्ठा करके एक मिडिल या हाई स्कूल में लेके जाएंगे जो दरमियान में आप बनाएंगे कहीं, तो डिस्टेंस टू स्कूल भी बढ़ गया. आप वहां पे 5 सेक्शन बनाएंगे या नहीं, अगर नहीं तो जिस तरह डिजाइन किया गया था वो डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि उनमें से 30, 40, 50, 60 जितने भी फीसद है वो बच्चे ड्रॉप हो जाएं, बाकी जो है वो इस मिडिल और हाई स्कूल में आ जाएं जो दरमियान में आपने बनाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ प्राइवेट सेक्टर के आने से भी रिमेंबर प्राइवेट सेक्टर का पिरामिड भी ऐसा ही है तकरीबन कि प्राइमरी स्कूल्स बहुत ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर में और मिडिल एंड हाई स्कूल वहां पे भी कम है. और क्योंकि मिडिल और हाई स्कूल की एजुकेशन इज मोर एक्सपेंसिव और प्राइमरी एंड मोर स्पेशलाइज्ड, तो शुरू प्राइमरी से ही करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले भी, तो वहां पे तो एंट्री की थोड़ी सी ईज हो गई, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पेशली इन अर्बन एरियाज एंड इन मार्केट वेयर मार्केट्स आर प्रेजेंट और वेयर देयर इज अ मिनिमम साइज फॉर द मार्केट. लेकिन बाकी सब इलाकों में अभी भी हमें बहुत मसला है कि मिडिल और हाई स्कूल हमारे पास मौजूद ही नहीं है. प्राइमरी में भी है पर मिडिल और हाई स्कूल पे ये मसला ज्यादा बढ़ जाता है. सो इस वक्त एक्सेस का, दैट्स द सिचुएशन. एंड अगेन व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज that the poor situation that we find ourselves in despite all the effort and all the progress is not by default, it is by design. अगली स्लाइड पे अच्छा, on the issue of quality,
आप सबके सामने है असर के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। टेट के 5वीं के 8वीं के इम्तिहान पंजाब के लिए आप देख लीजिए, मैट्रिक का रिजल्ट देख लीजिए, इंटरमीडिएट का देख लीजिए, इवन सीएसएस के इम्तिहानों के ऊपर जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो आप पढ़ के देख लीजिए। तमाम में 3-4 चीजें बड़ी क्लियर हैं। बच्चे अपने जिस लेवल पे उन्हें होना चाहिए उस पे नहीं है, उसमें 1-2 या ज्यादा साल पीछे है। उनकी आर्टिकुलेशन बहुत बुरी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बुरी है, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत बुरी हैं। एक ऐसे लिखना इवन सीएसएस के लेवल पे मुश्किल होता है, रट्टा बहुत ज्यादा चलता है। जो वर्ल्ड बैंक ने हैज डन वर्क ऑन क्वालिटी एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर पाकिस्तान, तो वो ऑलमोस्ट आधे हो जाते हैं। यानी अगर 8 साल हम बच्चे को स्कूल में रखते हैं तो वो कहते हैं कि क्वालिटी एडजस्ट करें तो उसकी वक़्त सिर्फ 4 साल के बराबर तकरीबन रह जाती है। इतना बच्चे ने तकरीबन पढ़ा होता है जब वो 8 साल स्कूल में रहता है। इससे ज्यादा आई डोंट नो कि क्या चीज what could be worse for us to as a condemnation of our education system and us the educators when we say कि भाई 8 साल 10 साल बच्चा हम अपने पास रखें स्कूल में और उसके बाद फिर वो जब जाए बाहर तो उसको ना पढ़ना सही आता हो, ना लिखना आता हो, ना उसकी समझ हो, ना क्रिटिकल थिंकिंग हो, और वो अपने जहां होना चाहिए उसको मैट्रिक के लेवल पे या 9वीं 10वीं के लेवल पे, उसकी बजाय वो 5वीं 6वीं के लेवल पे उसकी कॉम्प्रिहेंशन और बाकी चीजें हैं। सो क्वालिटी में and this is there's tremendous evidence on this. I don't think we need to emphasize this too much कि across the board। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, रिमेंबर हमारे पास अगर 100 स्कूल हैं तो 100% हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तकरीबन 55-60%, अब नंबर्स थोड़े वेरी कर रहे हैं, बट 55 से 60% बच्चा अभी भी गवर्नमेंट स्कूल जाता है, और तकरीबन 35% बच्चे जो हैं वो जिन्हें लो फी प्राइवेट स्कूल हम कहते हैं उधर जाते हैं, जिनको आप इलीट स्कूल्स कहते हैं, जिनमें वो बड़े बड़े स्कूल आ जाते हैं जो फीसें भी ज्यादा लेते हैं, चाहे 5-10 हजार से ज्यादा फीस हो वगैरह, वो सारे मिल मिला के भी 3-4% बच्चों से ज्यादा केटर नहीं करते। बाकी जो 97 या 96% बच्चे है, the 95-96% of children who are in school, not the ones who are not in school, but those who are in school are either going into government schools, low fee private schools, or a very small number, 2-3% in madrasas. So that's the bulk of where our children are, and that's where the quality of education is very poor. And it is poor by international standards. अभी आपने international exam भी देख लिए, उसके result भी आए, अच्छे हो बुरे हो वो examinations, लेकिन उसका नतीजा यही है कि पाकिस्तान in the comity of nations is very low. हमारे internal exams भी सारे ये कहते हैं। So overall assessment quality की यही है कि the quality of education being given in our school system is generally very poor. Let me go to the next point, which is on equity. Now, actually, ये PowerPoint is much more for as a way of just pointing out the main points, not as a way of detailed argumentation. तो वो ज़हन में रखिएगा कि this is more of a prompt for me than it is for you, but nonetheless, it is a very, very divided educational landscape that we are living in, right? और बहुत सबसे बड़ा predictor in some ways of what is happening, how your access to both quality and access to schooling is being mediated is through parental or household income or wealth. That's a very good predictor of the kind of education that you will get. I usually give here an example कि आप इस तरह सोचिए, think of a boy born in a rich household in Karachi, and think of a girl born in a poor rural household in Balochistan. अभी इसमें मैं किसी किस्म की लर्निंग चैलेंज या फिजिकल और अदर डिसेबिलिटी वगैरह नहीं लेके आया। 10% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई चैलेंज भी है। तकरीबन हर पॉपुलेशन में 10 से 12% के करीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनको
लर्निंग और अदर चैलेंजेस को फेस करते हैं, राइट? सो वो छोड़ भी दें, अगर आप ये सोचिए कि एक गरीब घर में रूरल बलूचिस्तान में if there's a girl there and there's a boy in a rich household in Karachi, will their educational opportunities be the same? Right? And that's the biggest killer for us. क्योंकि remember हमारा वादा 25A में क्या है? Free and compulsory education to everyone. At least that means that you are giving some quality and some assurance and some guarantee of minimum quality to every child. But in this case, you can be fairly sure that this girl, especially if she is in any way challenged, etc., she will not live probably to be the age of 6. वो उससे पहले ही चाइल्ड मोर्टेलिटी के नंबर्स आप बलूचिस्तान में देखें, दे आर इन्फेंट मोर्टेलिटी के, दे आर फेयरली बैड, एंड सो there's a significant chance, not very, but significant chance that a child with challenges will not survive to age 5 or 6. If she does, there's a very significant chance she will not end up being in school. If she does, there is almost no probability that she will reach metric level. Whereas we know the rich kid in Karachi will probably have access to A levels, O levels, English medium, very good education at grammar or whatever school, and Karachi has quite a few of them. And these two children will be living in two different worlds completely. They will not be citizens of the same world, of the same country, if you don't give them common experiences, if you don't give them something that is common to them in terms of curriculum, in terms of books, in terms of experience of school, in terms of quality of education, in terms of language, in terms of readings about the Constitution and the law and citizenship and so on. How can they be in the same world? How can they talk to each other? How can they then think of themselves as citizens of the same country? That's the kind of educational divide that we are living with. And it's not just the extremes that I have just mentioned. It is true for most people living in this country. We have divisions based on language, Urdu, Angrezi, Sindhi, local. We have differences in terms of quality of education, जिसकी बात हुई, access, 20 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं है, और जो हैं उनकी भी बहुत मुश्किल से वो ड्रॉप आउट होते जाते हैं across the education experience, in terms of what they are reading, in terms of how they are being taught, in terms of what they get in the education system. Everything is completely different between most children that we are making their way through the education system. So the question of equity then is what's common. सवाल ये नहीं है उनको फर्क मिल रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत क्लियर है, इतना ज्यादा तजाद और फर्क है हमारे जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हम दे रहे हैं उन्हें, कि असल सवाल ये है कि फिर उन्हें कोई चीज कॉमन मिल भी रही है या नहीं. और कॉमन से मतलब ये नहीं है कि एक हो, कॉमन से ये है कि जो एक तरीके से उनको ट्रेन कर सके, उनको सोच सके, उनको एजुकेशन दे सके वगैरह, और वो जाहिर है नहीं अवेलेबल. So the equity concerns are very large. And remember, अगर जिन्होंने वो पढ़ा हुआ है एल्बर्ट हर्शमैन की किताब एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी, 80 की दहाई में हमने फैसला किया था कि स्टेट इन अ वे वाज essentially the state gave up on education to a certain extent and said कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस एरिया में आ जाए. प्राइवेट सेक्टर आ गया और बड़े जबरदस्त तरीके से आया. The growth in the private sector over the last 20-30 years have been massive. I don't think, maybe other than mobile telephony and potentially motorcycle sales, other than those two, I don't know of many industries that, मैं लफ्ज़ इंडस्ट्री यूज कर रहा हूँ मिस्टर माजिद का, but those sectors that have grown as fast as private education has grown. अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा उसकी ग्रोथ स्लो होती नजर आ रही है, and that has to do with moving from primary to
middle also. जैसे एनालॉजी आपको पता नहीं बुरी लगे या नहीं, जैसे मोटरसाइकिल्स में 70 सीसी से 100 सीसी पे जाने में मुश्किल होती है, इसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा उसमें मसला है प्राइमरी से मिडिल एंड हाई स्कूल जाते हुए. लेकिन so the growth has slowed down a bit, but the growth has been massive over the last 20-30 years, and that the state has allowed and to a certain extent encouraged by not providing educational facilities and services of quality in the public sector. So what has happened is, as I mentioned, Albert Hirschman, is that a lot of people, those who could, have moved out of the public education system into the private system. They have exited from the public system. और जब exit होती है of those that are more, that have more of a political voice, that have more of a economic vote, तो उससे जो remaining बाकी लोग रहते हैं उनके लिए quality of service tends to go down. And this is true for the experience in many other countries. Even China में Sen, I think अमर्त्य सेन ने इसको डॉक्यूमेंट किया था कि जब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया था हेल्थ और एजुकेशन में, तो हाउ पब्लिक सेक्टर क्वालिटी आल्सो वेंट डाउन. एंड दिस इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज दैट हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस. एज मिडिल एंड हायर क्लासेस इनकम वाइज कह रहा हूँ, पुल आउट ऑफ द पब्लिक education, public health, public whatever infrastructure, public water, public sewage, public provision of security, as they pull out and devise private solutions for themselves and those who can afford it, the quality for the rest of the people in the system that still rely on public provision, that quality goes down. So यहाँ पे भी clearly, and that becomes an equity concern. इसी वजह से बहुत सारे ममालिक जिसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर से विड्रॉल जो है वो बहुत मुश्किल रखी हुई है. कनाडा इज एन एग्जांपल, यूरोप की बहुत सारे मुल्क एग्जांपल है जो ये कहते हैं कि आपसे करीब तरीन जो पब्लिक स्कूल है, और इवन हमारे रीजन में श्रीलंका इन अ वे इज एन एग्जांपल, जिन्होंने नहीं आने दिया प्राइवेट स्कूलिंग को किसी तरह, एंड येट देयर एजुकेशनल अचीवमेंट इंडिकेटर्स आर ऑलमोस्ट क्लोज टू दोज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट डेफिनेटली नॉट anything close to us or close to the average of the developing countries. So those people chose कि जो भी आपके करीब तरीब स्कूल है वहां पे आपका बच्चा जाएगा उसी पब्लिक स्कूल में, and you will not be allowed to shift them to a much better private school, etc. Or it appears draconian, but that's how they have stemmed the tide for exit to a certain extent, and use the other option that Hirschman talked about, which was voice. Voice is कि आप अगर उस स्कूल में ही हैं तो फिर उस स्कूल को बेहतर करने के लिए आप बात करेंगे, आप पुश करेंगे. आप खुद ही सोचिए, अगर बाजवा, शरीफ एंड एक्स एंड वाई जितने बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, इनका बच्चा करीब तरीन पब्लिक स्कूल में जा रहा होता तो उन पब्लिक स्कूल्स का वही हाल होता जो आजकल है. वेरी अनलाइकली. ऐसे ही नहीं चीफ्स कॉलेज और कैडेट कॉलेज और ये वो बन जाते. दोज आर वेयर the people with voice go. So the question is कि वो voice जो है वो अगर आप निकाल देंगे सिस्टम से by allowing exit, तो उसका एक consequence ये होगा कि फिर वो जो बाकियों के लिए सर्विस है वो खराब होगी, and that becomes an equity concern as well. So if you think about Pakistan in those terms, so clearly on access, quality and equity, we are doing extremely poorly on all of these, and these are not small concerns, these are very large concerns. अच्छा, let me now come to the single national curriculum. अगली स्लाइड अगर इस पे आती. डॉक्टर शौकत, मुझे बता दीजिए मैं कितना अर्सा कितनी देर बोलूं और उसके बाद फिर सवालों जवाब के लिए रुक जाऊं. Okay, you can start this topic and you can speak around 45 minutes and then we can start the question and answer session. Okay, so another 9 minutes. ठीक है. So, okay. 5 minutes for this session. अच्छा, total 45 आप कह रही हैं ना, अभी 36 minutes हुए हैं, तो I presume you can just continue. Yeah. ठीक है. अच्छा जी, so I won't take that long. अब I only have to talk about the essence. Now,
सिंगल नेशनल करिकुलम जो आया है, आप सबको पता है वो क्या है. बेसिकली सेइंग अ सिंगल करिकुलम अक्रॉस पाकिस्तान. अभी तक तो ग्रेड 5 का आया है, 6 to 8 पे काम शुरू हो गया है. और उसमें जैसे डॉक्टर शौकत ने कहा था कि प्राइमरी का जो पंजाब है उसने तो नोटिफाई कर दिया कि वो अगले साल मूव करेंगे. It's not clear about other provinces. I don't think Sindh is going to do it for the moment. I'm not sure what the process will be there because this is a provincial subject, and the provinces have to willingly or through some accommodation come into this. I don't know. Abhi, obviously, government hai PTI ki in KP and Balochistan, so I'm not sure in Khyber Pakhtunkhwa. Abhi, to the best of my knowledge, notification मुझे अभी मैंने नहीं देखा, मेरी नजर से नहीं गुजरा. अगर हुआ है उसका मुझे पता नहीं. और बलोचिस्तान का भी अभी मुझे अंदाजा नहीं है कि वहां पे नोटिफिकेशन हुए. आई थिंक अभी नहीं हुए, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही बहुत सारी डिस्ट्रप्शन चल रही है. सो आई एम नॉट श्योर व्हेन दैट विल बी डन. किताबें, मॉडल बुक्स जिनकी बात हो रही है वो कब तक प्रिंट हो जाएंगी वगैरह. लेकिन नॉनदलेस देयर इज, आपने फॉलो किया होगा अखबारों में, देयर इज डेफिनेटली अ मूव टुवर्ड्स द सिंगल नेशनल करिकुलम. नाउ आई वांट टू रेज 4 or 5 different arguments that have come up when in the debate on single national curriculum, and these pertain to access, quality and equity issues. And I'll sum it up after I give these 5 arguments, और उसके बाद फिर I'll then come to what can we expect from a SNC. पहली बात जो लोगों ने की उसमें ये है कि भाई, is this a minimum standards curriculum or a single curriculum? दोनों में फर्क है, राइट. मिनिमम स्टैंडर्ड करिकुलम ये कहता है कि ये करिकुलम हम दे रहे हैं, इससे कम आप नहीं पढ़ा सकते, इसके लेवल से कम कहीं पे तालीम नहीं हो सकती, चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, गवर्नमेंट का या प्राइवेट या पब्लिक. इससे कम, दिस इज अ फ्लोर बिलो विच यू कैन नॉट गो. एंड सो विच इज अ ट्रिमेंडस प्रॉमिस टू मेक, बिकॉज आपने देखा कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे, कितना बुरा हाल है. तो उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड लाना और एक फ्लोर लगाना और एक गारंटी देना तमाम बच्चों और पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को इससे कम क्वालिटी की तालीम नहीं मिलेगी, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. तो दैट्स अ मिनिमम स्टैंडर्ड्स करिकुलम जो बहुत सारे मुल्कों में है. बाय द वे, सिंगल वर्सेस मल्टीपल करिकुलम भी बहुत सारे मुल्कों में है. कहीं सिंगल है, कहीं मल्टीपल है, कोई एक चीज नहीं है तमाम मुमालिक में. So there's no one path to success in education, but we'll come to that later also. A single curriculum means that everyone teaches from this curriculum. Now the question to the state, and I think there is ambiguity from the federal government on that, क्योंकि जिस वक्त वो कहते हैं अब तमाम स्कूलों में ये सिंगल करिकुलम होगा, उसके उसी जुमले के साथ ही जुमला शफकत साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी लगाया कि लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं तो आप चलते रहेंगे. ओ लेवल्स, ए लेवल्स को हम बंद नहीं कर रहे फिलहाल, हम फिलहाल कुछ नहीं कह रहे आपको एक्सेप्ट कि इससे ये सिंगल करिकुलम लागू हो जाए. नाउ आई फील देयर इज अ क्लियर एम्बिग्विटी बिटवीन इन दिस पोजीशन. आर यू सेइंग कि यू आर इम्पोजिंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड, देन इट्स फाइन. द बीकन हाउसेस एंड द एचएसएन एंड व्हाटएवर, वो तो इससे जो आपने करिकुलम अगर देखा है उससे ज्यादा ही करवाते हैं. मे भी सिर्फ इस्लामियात में कम हो, वो इस्लामियात की चीजें और जो नाज़ा कुरान पाक ये वो है वो शायद ऐड हो, लेकिन उसके अलावा साइंस, मैथ ये वो में तो वो पहले ही बहुत ज्यादा चीजें गालबन करवा रहे हैं, लैंग्वेजेस में भी. तो क्या आप उनको कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ नहीं बदला, आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते जाएं, लेकिन हाँ जो मदरसा और जो लोफी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल था जो ये इस करिकुलम के मिनिमम स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच रहा, उसको कहा जा रहा है कि अब आप SNC से कम नहीं कर सकते. I think there is a clear ambiguity which I'm not sure how it's going to be resolved, but it is causing a lot of concern among parents as well as schools. Ke bhai, are we moving towards a single curriculum or a minimum? And both have different effects, right? Single curriculum can have the effect of pulling down people as well. क्या आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, अगर करिकुलम यही कह रहा है तो इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. Is that what we want from the single curriculum, or is it just rhetoric to get everyone to accept कि भाई equity पे कुछ हो रहा है हम, लेकिन है असल में ये minimum standard curriculum?
आई थिंक थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि जान के भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी रखी जा रही है ताकि ज्यादा क्रिटिसिज्म ना हो, लेकिन इवेंचुअली इसकी क्या सूरत निकलती है वो थोड़ा डायनामिक प्रोसेस है, एंड आई एम श्योर पीटीआई गवर्नमेंट विल वांट टू monitor the situation well before they move in one or the other direction. But this is definitely a point of concern that has come up in SNC and has implications for both quality and access, quality and equity, and we'll come to that point in a moment. Second, what about books and examinations? अभी तक कहा जा रहा है कि इम्तिहान तो जाहिर है हुई है ना, जो कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इम्तिहान चलते रहेंगे, किताबें मॉडल किताबें होंगी एसएनसी की, लेकिन मॉडल किताब का मतलब है कि these are the kind of books you will use, लेकिन उसका प्रोसेस अभी पता नहीं कि अगर आप जो फेडरेशन किताबें दे रही है वो नहीं इस्तेमाल करते तो क्या उसकी कोई पेनल्टी है, क्या आपको किसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है ताकि आप वो किताबें अप्रूव करवा सकें जो आपके ख्याल में मॉडल किताबों के बराहम पल्ला है या उनसे बेहतर है। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड का करिकुलम है या वो आफाक का करिकुलम है, और भी किताबें हैं बाहर भी पढ़ाई जाती हैं, वो किताबें अगर आप लगाते हैं तो डू यू हैव टू गो थ्रू सम प्रोसेस बाय विच यू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि look, these are as good as or better than the model books, or are you saying कि नहीं सिर्फ मॉडल किताबें जो किताबें फेडरेशन कह रही है उन्हीं का इस्तेमाल होगा? और अगर ऐसा है तो फिर तो एक्चुअली वी आर मूविंग फ्रॉम सिंगल करिकुलम टू सिंगल बुक एंड देन प्रोबेबली सिंगल एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि अगर किताबें भी एक जैसी हो जाती हैं तो फिर ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले कैसे इम्तिहान देंगे अगर उनकी किताबें भी आप डिटरमिन कर रहे हैं और वो नहीं डिटरमिन कर रहे? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि फिर इवेंचुअली आप ओ ए लेवल्स को खत्म करेंगे, सिर्फ मैट्रिक का इम्तिहान होगा? बट वी नो कि a lot of people don't like metric examination because it's a very poor quality exam both ways. It fails too many people and it also does not check learning. It actually is very much based on rote learning, etc. And therefore it's just a very poor examination. It does not discriminate on the basis of ability, etc. All it does is it discriminates on the basis of your ability to learn things by heart. So that's not a good examination system. If you only want one examination system in the country, you would probably require a lot of very good reforms in the examination system. लेकिन government ने अभी उस पे ज़्यादा बात नहीं की. I think that's also politically a much more difficult task. Boards वगैरह को, इम्तिहानों को रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए शायद उन्होंने अभी एसएनसी से शुरू किया है. लेकिन क्या is the idea to move in the direction of one book and one exam also? दो चीजें मैं इसमें और ऐड करूंगा इस लेवल पे. I have heard पिछले एक चीफ जस्टिस थे, वो कहते होते थे कि उनका तो यही एम है कि पाकिस्तान में एक स्कूल, एक किताब, एक इम्तिहान, एक तरह की तालीम, एक यूनिफॉर्म, सब कुछ एक जैसा हो. और इसको एको प्राइम मिनिस्टर की एक आध स्पीच में भी या टॉक में मैंने सुना था कि उनका अल्टीमेटली ख्याल है कि होना ऐसे चाहिए, पर वो कितने साल उसमें लगते हैं, किस वक्त हम वहां पहुंचते हैं, वो अभी इज अ लॉट मोर एम्बिगुअस. एंड आई थिंक शफकत साहब इन हिज conversations have been much more circumspect about this, and I said कि भाई हो सकता है उसमें बहुत साल लगे, but my presumption is that the direction is moving towards one book, one curriculum, one examination, etc. Now that has consequences. We will come to that in a moment. The third critique that has been made of SNC is on the issue of language. कि languages के बारे में बहुत ambiguity है कि local languages और mother tongue वगैरह का क्या रोल रह जाएगा अगर हम SNC पे और एक किताब और उर्दू पे ज्यादा जाते हैं. अभी तक वो अगेन फेडरेशन ने बार बार ये कहा है कि हम नहीं कह रहे कि आप सिर्फ उर्दू पढ़ाएं, हम ये कह रहे हैं कि अर्ली ईयर्स में आप जरूर लैंग्वेज यूज करें, बाकी रीजनल, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है वो क्लियर नहीं है. और बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं लैंग्वेज के जो आए हैं, वो जैसे अंजुम अल्ताफ साहब का आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, उनका काम देख रहे होंगे, वो क्रिटिक्स इसी बेसिस पे आ रहे हैं कि the notion of single and uniform
moves us in the direction of Urdu or English or Urdu and English, but not in the direction of using regional languages. So there is an argument about learning there कि early years में जो mother tongue के impact होता है उसका क्या effect होगा. There is an argument also in terms of कि भाई culture and कि भाई अगर आप वो जबान नहीं पढ़ाते बच्चों को जो उनकी मादरी जबान है तो क्या वो जबानें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खत्म हो जाएंगी और उनको उनकी तरवीज कैसे की जाए. So that's a question that still remains. And this has been pointed out. The fourth critique is that it's an attempt to mainstream madrasas, which is something that a lot of people in Pakistan feel is important and should be done. But the critique of this, and this is Hoodboy and Nayyar Saab to a certain extent, वो ये कहते हैं कि भाई is it mainstreaming madrasas or is it turning our mainstream schools into madrasas? कि आपने जो इस्लामियात, कुरान पाक नाजरा और बाकी करिकुलम है वो इतना बढ़ा दिया कि कई मदरसों में भी प्राइमरी के लेवल पे इतना ज्यादा इस्लाम और कुरान पाक और बाकी हदीस वगैरह नहीं पढ़ाई जाती जितनी आप मेन स्ट्रीम करिकुलम में ले आए. उसके कई जवाब फेडरेशन की तरफ से आए हैं कि जी क्या अच्छी बातें बता रहे हैं, इसमें बुराई किया वगैरह वगैरह. बट दैट्स नॉट द डिफेंस दैट Hoodboy and Nayyar and others have pointed out. They're just saying, is it, then, what is an attempt? Is it an attempt to create one uniform system with an accommodation of madrasas to then allow for a lot more Islamiyat and Islamic studies to come into the main schools as well? Whether that critique makes sense or not, that's up to you to decide, but that's the fourth critique that has come now. The fifth critique is of hegemony. Is the attempt to put single national curriculum trying to claw back some of the space that was given to the provinces under the 18th Amendment. 18th Amendment में आपने curriculum, examination, books, सब कुछ provinces को दे दिया. क्या बाद में अब ख्याल आ रहा है और इसके कई indications हैं from Supreme Court hearings also, but also from government. अभी मैं कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वो पीस सुन रहा था जिसमें वो फरमा रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि हम प्रोविंसेस को कुछ कह सकें तालीम पे वगैरह वगैरह और उसके बारे में सोचना वगैरह पड़ेगा. तो is there a feeling in the establishment, in the whatever level federation, too much was ceded in the 18th Amendment, and this SNC is an attempt to claw back some of that space for standards, for curriculum and so on, और कुछ चीजें जो हैं वो provinces के पास रहने देंगे, लेकिन the issue of curriculum will be handled at the federal level. उसमें वही मसाइल आ जाएंगे जो पहले भी क्रिटिक रहा है कि फेडरेशन फिर एक मोनोलिथ नोशन ऑफ आइडेंटिटी, लैंग्वेज और सारी चीजें देती है, तो उसको कैसे फिर चैलेंज किया जाए. अगर पंजाब बुल्ले शाह पढ़ाना चाहता है, सिंध जो है वो लोकल कोई शायर या कोई और कल्चर पढ़ाना चाहते हैं या हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, सेम थिंग फॉर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान या और अदर टेरिटरीज बनती हैं और प्रोविंसेस, तो क्या ये बहुत गलत है? क्या इससे बहुत ज्यादा डिस्पर्शन क्रिएट हो जाती है अगर हम ये स्पेस क्रिएट करें? फेडरेशन अभी तक इसका जवाब यही दे रही है कि एसएनसी में हमने मना नहीं किया आपको, आप एडिशनल चीजें डाल सकते हैं, लेकिन वहां वो बात वापस आ जाती है कि भाई बच्चों पे कितना वजन डालेंगे, दूसरा किस सब्जेक्ट में ये चीजें आएंगी, और तीसरा कि फिर वो मिनिमम स्टैंडर्ड है या सिंगल करिकुलम है. Let me just go to the last slide. So my real contention and question here has always been and still is is SNC really the hill that you want to fight the battle of education on? कि जब फेडरेशन कह रही है कि this is the main thing that we will be doing in education over this period of PTI government, चाहे वो इस वाली tenure में at least, is this the best way to tackle issues of access, quality, equity in the system? And my summary answer is I don't think it is. SNC does not go to address any of it. देखें access पे SNC कुछ नहीं करता. Quality improvement पे
डिपेंड करता है अगर आप ये स्टैंडर्ड्स लगा सके, जो कि इतना, देखिए ना, किसने रोका था अब से पहले पब्लिक सेक्टर में या लो फी प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के? क्या करिकुलम बुरा था? आप 2009 का भी करिकुलम उठाएं, करिकुलम तो तकरीबन यही था, उसको थोड़ा बहुत चेंज किया पर तकरीबन यही था, और वो इतना बुरा क्वालिटी का नहीं था, पर वो लागू तो नहीं हो रहा था ना। तो क्या सिर्फ उसे एसएनसी कहने से और नोटिफाई करने से वो स्टैंडर्ड खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे? I don't think that's it's the implementation side which is the main problem, and I don't see how SNC will help there. Equity in the system, this is the main point that government keeps making, कि सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप स्टैंडर्ड एसएनसी एक कर भी देते हैं तो उसकी दो डायरेक्शंस हैं। अगर आप ये लागू करते हैं कि हर कोई वही करिकुलम पढ़ाए, यानी उसको सिंगल कर देते हैं, so essentially you are saying we will pull down those who try to do more. So that doesn't seem the right vision of equity for us. We wanted to pull up the bottom, not pull down the top. अगर आप कहते हैं नहीं ये minimum standard है, तो then it will have not much of an effect unless it gets implemented in the low fee private schools and in the public schools and madrasa. अगर वहां implement होता है तो quality थोड़ी, जो आप गारंटी देना चाहते हैं फ्लोर है, वो राइज करेगा, अदरवाइज दिस वोंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन इक्विटी। सो द क्वेश्चन इज दिस द राइट बैटल टू फाइट फॉर दिस गवर्नमेंट? माय ओन फीलिंग इज, आई थिंक politically this one was doable, and so this is how they thought that this is a start, we will start from here, let's see how it goes. लेकिन I don't know how far it will go. For the moment I don't really see it addressing the issues that are pushed up by Article 25 issues of access, quality, and even equity right now. Let me stop here. Dr. Shaukat, is that good? Yeah, thank you so much, Dr. Bari. Now the house is open for the questions. Dear audience, if you have any question, just you can directly ask to the speaker, or you can write your question in the chat box. We have one question from Dr. Saima, and Dr. Saima is asking, in case of single national curriculum, what will be the platform of fee? If still huge difference, how the public and the private sector we will again produce two different categories of students? जी बिल्कुल, सिंगल एसएनसी में कोई ऐसी बात नहीं है कि फीस वगैरह एक होगी या कुछ ऐसा होगा। And so yes, this is a problem, and this is a question that a lot of people have been asking, कि भाई एचिसन या बीकन हाउस और जो मदरसा और गवर्नमेंट स्कूल और लो फी प्राइवेट स्कूल है उसको एक एसएनसी दे दें तो क्या उससे इक्विटी आ जाएगी? क्या एक जैसी तालीम होगी? क्लियरली नॉट, और उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी स्पेल्ड आउट। कि किस तरह से फिर एक सिस्टम आएगा, वो तभी आएगा अगर आप एक किताब और एक इम्तिहान की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ बहुत रेजिस्टेंस होगी, इसीलिए अभी उसकी तरफ गवर्नमेंट ने जाने की बात नहीं की है। Okay, we have next question from the PhD scholar Maria. She is asking, what inclusivity exists in the single national curricula in terms of students from madrasa sector? So मदरसे वफाकुल मदारिस से बातचीत हो गई है इनकी। बहुत सारे मदारिस ने कहा है कि वो पहले भी पढ़ा रहे थे मेन स्ट्रीम, उन्होंने कहा है कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ भी बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन अभी इट्स नॉट क्लियर कि सारे मदारिस आएंगे या नहीं और किस हद तक आ सकेंगे, और ये जो मेन स्ट्रीम करिकुलम है ये कौन पढ़ाएगा, वो वाले इश्यूज अभी आहिस्ता आहिस्ता ही रिजॉल्व होंगे। लेकिन आई थिंक शफकत साहब से तो जो जब भी मेरी बात हुई है और जो मैंने सुना भी है उन्हें, ही इज बी वेरी होपफुल कि बहुत सारे मदारिस हैव बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, एंड सो they at least the government is hopeful that this will allow a lot of mainstreaming to happen. Doctor, what are the ways to integrate madrasa education into the single national curriculum? ये बड़ा मुश्किल सवाल है डॉक्टर शौकत, क्योंकि अगर सिर्फ सवाल ये है कि क्या मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स वहां पढ़ाए जाने चाहिए, एक तो ये लेवल है। अच्छा, फिर ये सवाल है कि कौन पढ़ाएगा, फिर सवाल है कि उसकी इंटीग्रेशन जो मदरसा में पढ़ाया जाता है उसके साथ कैसे होगी। क्या हम
मदरसे के बच्चों के पे डबल ट्रिपल बोझ डालना शुरू कर देंगे कि फॉर एग्जांपल वो कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, जो हिफ्ज करना चाहते हैं वो भी कर रहे हैं, जो अहादीस वगैरह का उनका दौरा होता है वो भी। फर्क ये है कि आई थिंक प्राइमरी लेवल पे इतना ज्यादा मदरसे में भी तालीम का वजन इतना नहीं था, तो शायद कुछ इंटीग्रेशन हो सके, लेकिन जब हम मिडिल और हाई स्कूल पे जाएंगे और खासकर अगर दरस निज़ामी वगैरह के लेवल तक गए तो तब तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दरस निज़ामी का अपना बहुत ज्यादा काम होता है, और उसके साथ साथ बच्चों को कहना कि बच्चे बच्चियों को कि आप ये भी सारा कुछ पढ़े, वो बड़ा मसला हो जाएगा। सो वो इंटीग्रेशन कैसे उस लेवल पे होती है, आई थिंक इज वेरी मच एन इशू स्टिल। जी, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। वी हैव सॉरी, मैं एक छोटी सी बात और, उसमें एक और एम्बिग्विटी ये है कि अभी तक कुरान और हदीस पे हैं हम, इसलिए ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे बिटवीन जो इसमें एसएनसी में कहा जा रहा है और जो गालिबन तमाम मसालिक को काबिल कबूल होगा। लेकिन जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे तो जो डिफरेंट मसालिक हैं उनके डिफरेंसेस जो हैं उनको भी रेकनसाइल करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज निसाब में आए, कौन सी चीज ना आए, क्या वो अहले तशरीह की हो, अहले सुन्नत की हो, अहले हदीस की हो, कि फलाने बरेलवी ये वो जितने फिरके हैं, तो फिर उनके दरमियान भी बातचीत होनी पड़ेगी कि क्या चीज करिकुलम में आ सकती है और क्या चीज नहीं, पर वो जरा हायर लेवल पे शायद बात आएगी। Okay, so followed by this discussion, we have a really interesting question from Javeria. She is PhD scholar as well. She's saying, as we believe social tolerance is one of the aspects that's missing in our existing education system, how the single national curricula is bringing this concept with evidence-based activities. Sorry, मुझे समझ नहीं क्या किस चीज के बारे में बात की? Social tolerance. सोशल टॉलरेंस। अच्छा, अगर आप जो करिकुलम जिन्होंने बनाया उनसे बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी वैल्यूज जो उन्होंने ऐड की हैं इन मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो आप उर्दू पढ़ा रहे हो या अंग्रेजी, या आप वो इस्लामियात वगैरह पढ़ा रहे हो, उसमें वैल्यूज का बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है। उसकी कितनी सक्सेस, ये हमेशा से हमारे निसाब में रहा है, कोई ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं था अब हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस उसकी क्या होती है वो पता लगेगा जब जिस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं और पढ़ाया जाएगा। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वैल्यूज की कैसे होती है वो तो हमेशा रिमेन्स अ क्वेश्चन। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं उसकी दे सकता हूँ कि हमारा जो निसाब है उसमें तो शायद इतना ज्यादा हम फर्क ना करें माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज में, लेकिन मैं एक स्कूल में पेशावर में गया हुआ था, पेशावर के जरा बाहर लड़कियों का हाई स्कूल था, मैं कुछ सर्विस वगैरह कर रहा था वहां पे। तो वहां पे मैं जब प्रिंसिपल के कमरे में गया तो उनके कुर्सी के पीछे जो दीवार थी उस पे एक स्टिकर लगा हुआ था कि कादियानी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ना ये हिस्सा हमारे करिकुलम में तो नहीं है ना, हमारे करिकुलम में हम किसी से नफरत तो नहीं सिखाते, हम ठीक है माइनॉरिटी मेजॉरिटी वो सारा कुछ है, लेकिन हम ये तो नहीं कहते ना कि उसको कोई नाम दें, आप किसी तरह उसको डेनिग्रेट करें। लेकिन जो टीचर है अगर उसके व्यूज क्लास में इस तरह से आते हैं तो जाहिर है वो फिर करिकुलम जो है वो किसी हद तक बेमानी हो जाएगा या उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी अगर कॉल और फेल में तजाद इस तरह आया। सो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है। तो इस पे तो टीचर्स की ट्रेनिंग को भी फिर हमें फोकस करने की जरूरत है कि टीचर्स की क्या तरबियत है, उनकी क्या ट्रेनिंग है, उनको हेट स्पीच जो है वो क्या उसका पता भी है कि नहीं है। So, I mean, I believe these are one of the reason of the extremism, and that's why we are lacking in terms of the social tolerance in the society. डॉक्टर साहब, ये CNC क्या बात करता है एंटरप्रेन्योर स्किल्स के ऊपर, स्मार्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या बात करता है? क्या हमें ये चीजें बच्चों को सिखाने को मिलेंगी एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे? अभी तक तो 5वीं तक का करिकुलम बना है, 5वीं तक में आप प्राइमरी लेवल पे इस तरह की चीजें बहुत कम इंट्रोड्यूस होती हैं, कुछ हो सकती हैं। मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स वगैरह की कुछ बात हो रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप बाकी चीजें वगैरह वो आगे जैसे करिकुलम जाएंगे तो आई प्रिज्यूम उस वक्त ये चीजें ज्यादा आएंगी बजाय अभी तो इट्स टू अर्ली इन द प्राइमरी करिकुलम।
इन्होंने किस तरह से इंटीग्रेट किया सीएनसी को? क्या टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे और क्या एविडेंस बेस्ड एक्टिविटीज होंगी, या सिर्फ बस एक हमारे पास बुकलेट आ जाएगा और कहा जाएगा कि ये पकड़ें और क्लासेस में जाए और उसको टीच करें? तो मैकेनिज्म क्या होगा? जी, अभी वो प्रोविंसेस ने करना है। सो जब नोटिफाई किया है इसने पंजाब में, तो उसके बाद अब देखिए कि किस तरह से वो टीचर ट्रेनिंग डीएसटी के थ्रू और किताबें और उनके जो मॉडल बुक्स और उसके फिर जो बनते हैं हेल्प गाइड्स, ये वो कैसे बनेगी और फिर उस पे किस तरह ट्रेन करेंगे, क्या उसकी जरूरत है या नहीं, कितना चेंज आया है, जिन सब्जेक्ट्स में चेंज आया है शायद उसमें तो करें, लेकिन मैथ में बहुत सारी चीजों में तो करिकुलम में ज्यादा चेंज नहीं है। सो इसलिए वो वहां पे शायद इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े चेंज करने की चीजें। बाकी वो प्राइवेट सेक्टर पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका भी अभी मैकेनिज्म वगैरह कोई नहीं बना, तो आई प्रिज्यूम वो भी किसी वक्त पता लगेगा कि ये कैसे देखेंगे कि मसलन एचिसन जो है वो एसएनसी पढ़ा रहा है या नहीं, या बीकन हाउस पढ़ा रहा है या नहीं। छोटे स्कूल पे तो शायद जोर धप्पा चल जाएगा, लेकिन इन स्कूलों पे कैसे करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जब ये उर्दू लगा रहे थे तो मैंने एक दफा मिनिस्टर साहब को पंजाब के कहा था कि भाई आप एक्शन पे भी तो लगा के दिखाएं ना, तो उन्होंने कहा नहीं, एक्शन छोड़ के बाकियों की बात करें। वो शायद वो खुद भी एक्शन से तो चाहे इसलिए कहा, लेकिन बहरहाल इस तरह की एक्सेप्शन अगर रहेंगी तो फिर सिंगल तो नहीं रहेगा अगर आप एक्सेप्शन देते रहेंगे टू द वेरी प्रिविलेज्ड। Dear audience, do you have any question? Dr. Nasir, would you like to ask any question from Dr. Faisal Bari? I think he might be busy. Dr. Faisal, अगर हम CNC के बगैर क्या हम एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं लेके आ सकते? क्या ये हमारी बड़ी जरूरत है जिसके ऊपर हम अपना बजट भी लगाएंगे और फिर बाकी एफर्ट्स भी लगाएंगे? और बड़ी टॉक्स हो रही हैं, बड़ी डिबेट है। आपके लम्स की फैकल्टी बहुत इन्वॉल्व रही है सीएनसी की डेवलपमेंट के अंदर, तो लेकिन आई एम हैप्पी कि यू हैव अ वेरी डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये क्यों इतना जरूरी हो गया है एकदम से? दो तीन चीजें हैं। फैकल्टी में हमेशा डाइवर्सिटी होती है। इंडिविजुअल्स वर्क विद फेडरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, वो तो हमेशा रहेगा ना। वो आपकी फैकल्टी में भी होगा कि लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। उनकी जो इंडिविजुअल फैकल्टी की स्पेस है एज देयर ओन प्राइवेट स्पेस फॉर वर्किंग, वो तो बहुत ज्यादा होती है एज दैट्स वेरी प्रोटेक्टेड। सो उसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं, एज लॉन्ग एज these are within the limits of law and so on. Any intellectual activity should be encouraged and freedom of expression protects that. लेकिन जहां तक ये है कि डाइवर्सिटी तो हमेशा होगी ना। जाहिर है मैं उस तरह तो नहीं सोचूंगा जैसे आप सोचती हैं, आप उस तरह नहीं सोचेंगे देखते जैसे डॉक्टर नासिर सोचते हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत फर्क तो आएंगे। अच्छा, लेकिन जहां तक ये सवाल, आई डू डिसएग्री विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑन दिस के मेरे ख्याल में अगर आपने यूनिफॉर्मिटी की तरफ भी जाना था तो आई थिंक के there were other things that we could have done which would have made much more of a bigger difference. I think revamping the examination system, and I'm very, क्योंकि हमारे यहाँ teaching to the test बहुत होती है ना। 9वीं 10वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं आप देखें वो तो 2-3 साल रट्टे और रट्टे पे चलते हैं। So teaching to the test इतनी ज्यादा होती है, उस पे अगर आप वहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम के रिफॉर्म से शुरू करते, उसको रिफॉर्म करना शुरू करते, वो बेहतर करना शुरू करते, ताकि वहां पे हम बेहतर इम्तिहान बनाते जो लर्निंग टेस्ट करे, जो रटे को डिस्करेज करे, जो कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ जाए, तो वहां से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को उठाने में मेरे ख्याल में ज्यादा आसानी होती और ज्यादा जल्दी हम कर सकते। पर आई मीन दैट्स अ चॉइस। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये भी सोचना था ना कि क्या चीज ज्यादा डूएबल भी है, तो पोलिटिकली शायद एसएनसी वाज अ मोर डूएबल थिंग then taking on something as difficult as exam, or obviously you want some results also as you go along. So successes at the SNC level might build up something. I think federal government is hoping it will build up to much more in the future, but I'm not so sure. कुछ एजुकेशन इमरजेंसी की कोई बात है सीएनसी में कि अगर कोई लर्निंग क्राइसिस आ जाए, जैसे पेंडेमिक की वजह से जो हम फेस कर रहे हैं, हमारा मिडिल, हमारा प्राइमरी और ड्रॉप आउट तो पहले ही है,
तो फिर किस तरह से हम इस CNC से फायदा उठाएंगे फ्यूचर में? जैसे मैंने कहा डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक ड्रॉप आउट्स और बाकी चीजों पे इसका कोई इम्पैक्ट आएगा, ना एक्सेस पे आएगा. दिस इज मच मोर टू डू विद concerns about equity, जो PTI has always been very concerned about. लेकिन even there, I feel that this is not the right instrument by which to handle that. Dear audience, if you have any question, you can directly ask to Dr. Bari, or you can write it in the chat box. Dr. Nasir, are you there? Nasir Saab seems busy. Anyhow, it has been really interesting, Dr. Bari, and on behalf of University of Education, I'm really thankful to you for accepting my invitation and for conducting your wonderful session on CNC. That's a need of our society. And I'm looking forward to hear from your side in a future as well. We might arrange any symposium or any conference, so I would like to invite you once again, and thank you so much. It's my pleasure, and thank you very much. In any time at all, I'm always here. I work on education. उसी पे research और उसी पे teaching वगैरह ज़्यादातर मेरी चलती है. So जब भी आप कहेंगे, it will be a pleasure and an honor. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Waseem, can we stop recording?